Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Is everyone with me? Let me know in the comment section. So is everyone new here so that I can start with the very basic introduction of what we are doing here and what is the purpose of this live lecture. Okay? So मुझे comment section में सब लोग बताते रहेंगे. I am reading your comment section here. ठीक है, आपका comment section यहाँ पे चालू है और मैं आप लोग को यहाँ पे interact कर रही हूँ. Hello, you are back. Okay? So हम लोग का आज का टॉपिक है साइंस. ओके, दिस इज स्टैंडर्ड 7th, राइट? स्टैंडर्ड 7th. ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू ज्वाइन. जैसे सब लोग ज्वाइन हो गए, वी कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. ओके, एंड यस, एनी कमेंट्स? दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर. यस, फर्स्ट लेक्चर फॉर स्टैंडर्ड 7th. ओके, आप लोग बोलते रहते थे ना, मुझे हम लोग को स्टैंडर्ड 7 चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड 8 चाहिए, स्टैंडर्ड 9 चाहिए. 8 तो हो रहा था ऑलरेडी. 9 का जस्ट वी कंप्लीटेड वन लेक्चर एंड टुडे आल्सो वी आर कंप्लीटिंग फर्स्ट लेक्चर फॉर स्टैंडर्ड 7. सो लेट एवरीवन जॉइन. जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन. लिंक अभी गई है आप लोग को एंड whoever is present here, share the link with your friends. Go fast. Share the link with your friends अगर आपके friends भी 7th standard में है, so that even they can benefit from these live lectures. Okay? Thank you. Just waiting for everyone to join. Okay? 7th standard, were you informed for the lecture today? That your lecture will be conducted at 5:30. Everyone was informed today? Okay, till then I'll write the chapter on the board. ठीक है? Okay, आए सब लोग? Hello धनश्री. Is 7th standard here? Thank you Dhanashri. Okay, just waiting for everyone to join. And this is the chapter we are going to, or the topic we are going to cover today. Okay? Hello. 3 people. Yes, we are waiting. Because अभी link create हुई है, link सब तक पहुंचेगी. People will join. It will take some time. Am I right? Live lecture है ना? We have to wait for everyone to join. Okay, Abhijit, hello. Till then, I'll interact with everyone who is present here. Okay, just before starting with the introduction, मुझे देखने को कौन-कौन present है अभी मेरे lecture में. Is that you, Ifat? 13 people joined. Come fast. Standard 7th. और अगर अभी आप लोग का मतलब everything depends on your strength. Standard 9 की strength was good. So yes, we will continue with the lectures for standard 9. 8 तो हमेशा ही रहते हैं. And then today first lecture standard 7 का पता चल जाएगा. ठीक है? What is your strength? कितने लोग join करें? Till then whoever is present just give it a like. Okay? और अगर नहीं देना है तो it's okay. पहले lecture देख लो and then if you understand then give it a like. Not ऐसे कोई compulsion नहीं है. Okay? Asha, you are in standard 8 now? No, you are asking again and again for standard 7th lectures. Yes, I remember. You are in all my lectures? Good. Thank you for that. Okay, 19 people have joined. Waiting for everyone to come. Come fast, people. Let's start with standard 7th. Yes, it's 7th. Aisha Sheikh, hello. Finally, you got your lecture, na Asha? Okay, Shreyas, you are in standard 7. Good, then it will be very beneficial for you today. 11th standard, बाद में होगा, Aisha, okay? Hi. Good evening everyone who are joining right now. Good evening to one and all present here. Let's start. No, just wait. 2 minutes. Let's wait for 2 minutes. Let everyone join. I will give introduction for this live lecture and then introduction for the chapter. Yes, I know you. Good evening. Yes, Ifat.
12th का, जब 11th का हम लोग शेड्यूल करेंगे जब 12th का भी शेड्यूल हो जाएगा. We will think for it. Just everything depends on your response. If you are responding good, we will take more and more lectures for you. और ऐसे lectures जिसमें आप लोग को ऐसे बोर नहीं होने वाला है. It will be fun lectures, okay? 12th का कब होगा? Told you yes and yes. Don't repeat one thing again and again. First point. Secondly, we have a team sitting there. If they find any abusive comment और कोई भी comment जो नहीं सही है, they will right away throw you out of the lecture, and then you will not be able to say any live lecture of this home revise. Okay, so please don't do that. Yes, I will take fifth also, but I will inform you. Yes, it is a very good learning app. You can see everything in audio visual form, and then we have a teacher also now. Okay. Again, you joined for standard 7th also you are joining, Rahil. You are in which standard exactly then? You are joining for 7th, you are joining for 9th. Okay. So people have received the link. Let's see if they haven't. बाद में वो लोग देख लेंगे. Okay. It is not just live. You will get the recorded lecture also. Okay. You will get the recorded lecture also. Hello Dakshita. 8th class तो हो ही रहा है ना? Tanu is back again for standard 7. Okay, so I'm starting with the introduction for everyone who is new here. I've attended all your lectures. Thank you, Shreyas. Shreya na or Shreyas? Okay. So who all are new? Just let me know in the comment section. कौन new है यहाँ पे so that मैं live lectures का introduction दे सकूँ. Let me know कौन new है यहाँ पे. Attending this lecture for the first time, received the link for the first time from WhatsApp. Hi Samir. Aviation hunk. You are new? It will be tomorrow mostly, Dhanashri. Dakshata is new. You are new. Okay. So, what exactly we are doing here? सब लोग के पास जो भी यहाँ पे present है, सबके पास home revise app है. Am I right? अगर जिसके पास नहीं है तो यहाँ पे साइड में आप लोग को बार कोड भी मिलेगा. आप लोग प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो. आप लोग को ऐप मिल जाएगा इजीली. तो होम रिवाइज ऐप में जो भी आप लोग का टेक्स्ट बुक है, इट इज मैप एग्जैक्टली द सेम इन एनिमेटेड फॉर्म. इज दैट अंडरस्टूड? एनिमेटेड फॉर्म में इट इज अवेलेबल फॉर यू. पर अभी आप लोग को देख के ऐसा होता है कि अरे कंटाला आ रहा है देखने को, बट नाउ यू हैव अ टीचर जिसकी वजह से तुम लोग को होम रिवाइज ऐप को देखना ही है. अभी मैं जो चैप्टर बोलूंगी यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू कम. आर यू रेडी फॉर दैट स्टैंडर्ड 7? 8th का हम लोग का ऐसे ही लेक्चर्स हो रहा था एंड हम लोग ने बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव वे में हम लोग ने मैक्सिमम चैप्टर्स भी हैव कंप्लीटेड हियर इन लाइव लेक्चर्स. ओके, बट जस्ट लेट मी नो 7th स्टैंडर्ड, आर यू रेडी फॉर योर लेक्चर्स? ओके, यस. अब्यूजिव कमेंट्स जाएंगे किधर? वी विल थ्रो यू आउट ऑफ द लेक्चर. Okay, there are students who are here for studying. Yes, ready. So, the chapter today we are going to do is chapter number 11 from 7th science, cell structure and microorganism. जरूरी नहीं है कि 7th वाले ही रहे because this is a very basic topic. सेल स्ट्रक्चर सबको पढ़ना ही है कभी ना कभी, और माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग को पढ़ना ही है. ठीक है, उसके बाद भी यस वी आई एम टीचिंग महाराष्ट्र बोर्ड होंगी ना राइट नाउ. ओके, बट चलेगा, दूसरे बोर्ड्स भी अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू डू द इंट्रोडक्शन फॉर सेल. अभी जस्ट 9th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर हुआ है एंड 8th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी सेल वाला ही टॉपिक था. कोइंसिडेंटली सबका स्टार्ट में सेल ही था. ठीक है, तो मुझे आप लोगों को फिर से एक सेल का इंट्रोडक्शन देना है. यू नो व्हाट, एक ह्यूमन है, ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका सबसे बेसिक यूनिट इज, हर चीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. ओके, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट, यस अभिजीत, cell is the smallest and the
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। लाइफ आई कहाँ से है? सेल से आई है। डू यू नो दैट? लाइफ आई कहाँ से और सेल पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, किसको पता है? ठीक है, एक सेल की वजह से एवोल्यूशन हुआ 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 और उसके बाद ह्यूमंस बने। ठीक है, हर चीज स्टार्ट से एक सेल से चालू हुआ था और हमारे भी बॉडी कंपोज्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज नोन एज सेल। नॉट पार्टिकल एग्जैक्टली, इट इज व्हाट लिविंग, मतलब वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको याद रखना ही है। यस तन्मय, आई नो दैट इट इज द बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेसिक, उसको और सब डिवाइड नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल, बाय स्ट्रक्चरल क्योंकि वो हमारा स्ट्रक्चर बनाती है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, और फंक्शनल, हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस चल रहे, लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चल रहे। जैसे मैं अभी ब्रीथ कर रही हूँ तो रेस्पिरेशन चालू है, और मैंने कुछ खाया है, डाइजेशन चालू है। ठीक है, सर्कुलेशन चालू है। हर लाइफ प्रोसेसेस, जो भी मेरे बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, एक सेल में भी हो सकते हैं। एक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, हर लाइफ प्रोसेसेस इज कैरीड बाय अ सिंगल यूनिट which is a cell. So cell is the basic structural and functional unit of living organisms. Sorry, मैंने introduction के टाइम पे नहीं देखा। What is too small? 11th स्टैंडर्ड में हूँ पर आपका लेक्चर एक भी मिस नहीं करते। गुड। लाइव लेक्चर कभी होगा? 8 के लिए ना कितने सारे लाइव लेक्चर हुए, कितने चाहिए आप लोग को? धनश्री, 8 के लाइव लेक्चर्स काफी हो चुके हैं अभी तक, तो जितने नहीं थे टारगेट से भी ज्यादा हो चुके हैं लाइव लेक्चर्स, बट हो गए। आगे भी मैंने शेड्यूल किया है 8 स्टैंडर्ड के लेक्चर्स भी। ओके, एंड वी विल लेट यू नो। तो समझा आप लोग को? सेल समझा, व्हाट इज द सेल? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा पार्ट, इनडिविजिबल पार्ट, उसको और नहीं डिवाइड कर सकते, इज अ सेल। ठीक है, अब ये सेल एक सिंगल सेल भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनी। यूनी मतलब वन, यूनी मतलब व्हाट? वन। और आंसर मुझे तुम लोग से चाहिए। ओके, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू लाइक ब्लैबर करती जाऊंगी। नो, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। यूनिसेल्यूलर, ठीक है, और फिर बहुत सारे सेल साथ में रहेंगे। मल्टी, मल्टी पता है ना, बहुत ज्यादा। मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यस श्रेयस, यू आर राइट। मैथ्स का आई थिंक सो डे आफ्टर टुमारो। ओके, डे आफ्टर टुमारो मैथ्स लेक्चर होगा। यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, इतना समझा आप लोग को? ठीक है, तो सेल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सेल आया कहां से एग्जैक्टली? यस, यू आर राइट श्रेया। एग्जैक्टली सेल कहां ओरिजिनेट हुआ था, किसको पता है? लाइफ स्टार्टेड, कहां से लाइफ स्टार्ट हुई है? Let me know in the comment section. Right to right, wrong to wrong. No one is going to criticize you. Let me know. Okay. Maths is number 5. 10th क्लास का नहीं चैप्टर लो ना। हाँ, होने वाला है ना ये मंथ 10th का 4th फेब को। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, आप लोग को पता है अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, क्या है अल्फाबेट्स? ए बी सी डी जेड का अल्फाबेट्स होते हैं। अगर हम लोग अल्फाबेट्स को साथ में लाते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। हम लोग अल्फाबेट्स को साथ में लाते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स। तो स्टार्ट कहां से हुआ था? अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ था ना। ठीक है, अल्फाबेट से हमने क्या बनाया? वर्ड्स बनाया। अभी इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी 7th कब होगा, 8th कब होगा, 9th कब होगा, यस वी विल सेंड यू द टाइम टेबल, डोंट वरी। बेल आइकन प्रेस करो, जब भी होगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन। बट एट दिस टाइम व्हेन आई एम टीचिंग यू समथिंग, उस पर ध्यान दो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल यानी टिश्यू? नो तनु, सेल से टिश्यू बनेगा, वो बताती हूँ कैसे। जैसे अल्फाबेट से वर्ड बनेगा, और ज्यादा वर्ड्स जब एक साथ आएंगे तो क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है, फिर बहुत सारे सेंटेंस एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ बनेगा। फिर बहुत सारे पैराग्राफ्स मिला के एक चैप्टर बनेगा।
बहुत सारे चैप्टर मिला के एक बुक बनेगी। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ये फ्लो चार्ट जैसे बन रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ रहा है ये फ्लो चार्ट, अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ। ठीक है, वैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में कैसा होता है यहाँ पे बताओ आप लोग को। इज दैट विजिबल? ऑर्गन बनेगा। हाँ वो मुझे समझा, पर यस अभी आपको और समझेगा। वेट, अल्फाबेट वर्ड्स ये जैसा है ना, वैसे ही सबसे बेसिक सेल है। ठीक है, सबसे बेसिक सेल है। जब सेल एक साथ आते हैं, और कौन से सेल एक साथ आते हैं? अभी देखो मैं फॉर एग्जांपल एक बहुत फ्रेंडली पर्सन हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेरी एक बहन है वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, थोड़ी ज्यादा बात नहीं करती है किसी से। तो मैं जब स्कूल में जाऊंगी तो मैं किसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करूंगी? वो लोग के साथ जो बहुत फ्रेंडली है, उन लोग के साथ मेरा ग्रुप बन जाएगा। और मेरी फ्रेंड का ग्रुप किसके साथ बनेगा? जो ज्यादा बात नहीं करते, जो अपने अपने में रहते हैं, उनके साथ एक ग्रुप बनेगा। तो लाइक माइंडेड पीपल एक साथ आते हैं ना। ठीक है, वैसे ही सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर सेम स्ट्रक्चर होता है जिनका, वो लोग साथ में आ जाते हैं। समझे आप लोग को? ठीक है, वो लोग क्या होते हैं? साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स जब एक जैसे सेल साथ में आ जाएंगे तो वो बनाएंगे टिश्यूज। क्या बनाएंगे? टिश्यूज। समझा? इतना समझा? क्योंकि वो सेल सेम स्ट्रक्चर वाले हैं, सेम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक सेल है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, ये शेप है, और दूसरे सेल का ये शेप है, तो ऐसे वाले सेल्स सब एक साथ आ जाएंगे, और ये वाले शेप वाले सेल्स सब एक साथ आ जाएंगे। ये वाले शेप वाले सेल एक साथ आ गए, ये वाले शेप वाले सेल एक साथ आ जाए, कि ये अपना एक टिश्यू बन गया, ये अपना एक टिश्यू बन गया। ये समझा आप लोग को? गॉट इट? ठीक है, तो किस तरह सेल से टिश्यू बना? ठीक है, टिश्यू से हमारा बनेगा ऑर्गन। ठीक है, टिश्यू से क्या बनेगा हमारा? वर्ड विजिबल है ना आप लोग को? गॉट इट ना? तो टिश्यू से हमारा बनेगा ऑर्गन। ठीक है, तो अभी देखो फॉर एग्जांपल मेरे हार्ट हार्ट है, ठीक है, हार्ट का एक सेल है। ठीक है, हार्ट के सेल्स एक साथ आ जाएंगे जिसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, वो सेल्स एक साथ आ जाएंगे और फिर बनाएंगे टिश्यूज। मेरे हार्ट के टिश्यूज इज डिफरेंट, वो बनाएगा एक ऑर्गन। वो ऑर्गन मेरा क्या है? हार्ट। फिर उससे बनेगा, क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। तो हार्ट से कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनेगा मेरा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, is everyone watching? Is standard 7th with me? Is standard 7th with me? Let me know. Tissue से organ, organ से organ system. Yes, you are right, Tanu. ठीक है? तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो अभी मैंने हार्ट की बात किया ना, तो हार्ट से मेरा पहले क्या बन रहा था? हार्ट के टिश्यूज बने थे, उससे मेरा एक ऑर्गन बना हार्ट। तो उससे कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनेगा? मतलब हार्ट कौन से सिस्टम में आता है? क्या काम है हार्ट का? हार्ट का काम क्या है? सर्कुलेशन करना। एम आई राइट? हार्ट का काम क्या है? सर्कुलेशन करना। तो वो कौन से सिस्टम में आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। विच सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मिता, lecture is going on for standard 7th. Okay, standard 7 science chapter number 11 जो मैंने अभी रख कर दिया। Voice is not clear? One second. सब लोग को वॉइस आ रहा है मेरा? दूसरे लोग को वॉइस आ रहा है? एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड गिव इट अ लाइक। यस राइट श्रेया, इट इज सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, तो इट विल फॉर्म व्हाट? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैंने ऐसे लिख दिया, और बहुत सारे सिस्टम्स है। ठीक है, इससे बनेगा मेरा एक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो एक ह्यूमन बन गया। ठीक है, नो मिस इट इज क्लियर ना? ओके, ठीक है, तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गया एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है क्या? नहीं, मेरे बॉडी में और कौन से सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इतने सारे सिस्टम है ना मेरी बॉडी में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब सिस्टम के ऑर्गन्स अलग अलग है। जब मैंने हार्ट बोला तो आप लोग ने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम। जब मैं बोलूंगी ब्रेन तो आप लोग बोलोगे
नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब मैं आप लोग को बोलूंगी लंग्स, जब मेरा ऑर्गन रहेगा लंग, तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। जब मैं बोलूंगी लंग्स तो आप लोग क्या बोलोगे, बताओ मुझे। मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, प्लीज महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मैथ लीजिए ना। ये महाराष्ट्र बोर्ड ही चालू है, हमारे सारे लेक्चर्स उसके ही हुए हैं। ठीक है, और उसका मैथ्स भी होने वाला है। 10th क्लास कब होगा? आप कितने बार पूछते हो ये पेजेस? 10th क्लास 4th ऑफ जनवरी में होगा, आफ्टर न्यू ईयर। आप लोग एंजॉय करके आ जाओ न्यू ईयर। इज दैट अंडरस्टूड? मैंने पूछा लंग में कौन सा ऑर्गन सिस्टम होगा? यस, एग्जैक्टली, इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, सारिका एंड श्रेया, हेमंत, no, it is not circulatory system. Lung is not a part of circulatory system. वहां पे circulation होता है, but it is not a part of circulation. Lung से क्या होगा? Respiratory. ठीक है, lungs are from respiratory system. तो समझा आप लोग को? थैंक यू तेजस। समझा आप लोग को? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? टिश्यू से। इज दैट अंडरस्टूड? हेलो यर रिया। ओके, सो यस, मैंने एक बेसिक आप लोगों को बता दिया व्हाट इज सेल, उससे कैसे सिस्टम्स बनते हैं, आप लोगों को बेसिक समझ गया। इफ यू वांट यू कैन गो एंड गेट योर टेक्स्ट बुक. Go and get your textbook. I will switch the screen. I'll be there, okay, with Home Revise app. I'll be there with Home Revise app because हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग Home Revise app से पढ़ रहे हैं ना। जब हम लोग के पास everything is present in animated form, we have everything in audio visual form, तो हम लोग क्यों बोर्ड पे पढ़ेंगे? किसी को बोर्ड दिखता है नहीं दिखता है, स्क्रीन पे आपके डायरेक्ट आएगा ऐप। फॉर द पीपल हु आर न्यू उनको बता रही हूँ, ठीक है? जिन लोगों को पता है, लोगों को तो पता है, मैं एवरीडे ऐप से पढ़ाती हूँ आप लोग को। ठीक है, पीपल हु आर न्यू उनके लिए हम लोग होम रिवाइज ऐप पे स्विच करेंगे। सो फॉर दैट 2 मिनट्स का ब्रेक यू विल टेक। गो गेट योर टेक्स्ट बुक इफ यू डोंट हैव विथ यू। इफ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग देन यू कैन यूज अ नोटबुक आल्सो। ये क्वालिफिकेशन नेम एवरीथिंग आई कैन डिस्क्लोज बिकॉज वी आर हैविंग अ लाइव लेक्चर हियर। ओके, ओके, सो जस्ट गो एंड गेट, ओके। संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई। So is everyone here? Let me know if everyone is here. आप लोग को आवाज आ रहा है? ऑडिबल हूं मैं और विजिबल हूँ? वापस से मैं ये दो चीज आप लोग से पूछूंगी। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? स्क्रीन आप लोग को नहीं दिख रही होगी ना होम रिवाइज की? यस, यस, ऐसे मुझे आंसर करते रहो आप लोग, मुझे समझ में आएगा। यस, यू पीपल आर देयर विथ मी। ठीक है, यस, एक सेकेंड, ओके। सो मैं अभी आप लोग को 2 मिनट बस दे रही हूँ, ठीक है? आई गेट द ऐप, होम रिवाइज ऐप विथ मी। स्टैंडर्ड 7 के लिए आई हैव टू गेट द ऐप ना, इसके लिए। ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, गेट योर नोटबुक, पेन, एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, एंड जस्ट बी रेडी। यस, यू आर विजिबल एंड ऑडिबल ना? यस, थैंक यू श्रेया, एंड बी रेडी विथ एवरीथिंग। ओके, आई एम देयर, आई विल बी देयर।
संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई। So is everyone here? Glad with your teaching? Is everyone here? Can you see the screen there? Just let me know. आप लोग को स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है, मैं क्लियर हूँ, so that we can start. Okay? Thank you. And yes, listen. आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है और मुझे आप लोग के कमेंट सेक्शन राइट में दिख रहे हैं। फॉर एवरीवन हु इज न्यू हियर, मुझे आप लोग के कमेंट सेक्शन यहाँ पे राइट में दिख रहे हैं। मैं यहाँ से आप लोग को आपके कमेंट्स पढ़ते जाती हूँ और यहाँ पे आप लोग को रिप्लाई भी दूंगी, प्लस आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके, वी आर डूइंग साइंस। Okay, we are doing chapter number 11. Can you see the screen? Cell structure and microorganism. Okay, इसमें total we have got 20 points, but हम लोग पूरे 20 points नहीं करेंगे because you have the home revise app. उसमें बहुत अच्छे से explained है. All the 20 points are explained in detail, एकदम अच्छे से. Is that understood? You can see the screen ना. If the screen is small, rotate कर लो. और अगर नहीं फिर भी small लग रहा है आप लोग को, तो ठीक है ना, मैं आप लोग को बोलते ही जा रही हूँ. Yes, you have to buy, and at least you are getting 5 days free trial. At least use that first. Okay? If you are understanding, अभी तक अगर आप लोगों को समझा है सेल का बेसिक चीजें, so give it a like. Okay? Don't go without giving a like because it will give me an idea. मुझे आप लोग के lectures लेने हैं, नहीं लेने हैं. Is everyone there? हाँ, सब लोग है, like दे रहे हैं. Okay, I will conduct lectures for standard 7th also then. ठीक है? Already I am taking for 8 and 9. So you can see all the 20 points placed here. So we are not going to do this use your brain power because आप लोग के पास already है home revise, ठीक है? और observations ये सब नहीं, हम लोग डायरेक्ट आएंगे मेन चीजों पे, ठीक है? तो पहले हम लोग सेल का मेन देख लेते हैं. What is exactly cell? Okay? मैंने तो Chapter 11, Cell Structure and Microorganism. Let's recall. What is the name of the minute components of which the body of a living organism is made? देखो, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या बनते जा रहा है? बहुत सारा क्या बना है? क्या बना है? आप लोगों को तो आंसर पता है. इट इज सेल. ओके, यस प्रमोद पवार, यू आर. The minute components of which the body of a living organism is made is called a cell. Is the number of these smallest units the same in the bodies of all living organisms? ऐसा है, ये जो सेल की नंबर है वो हर ऑर्गेनिजम्स में सेम है क्या? ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे छोटे भी अवेलेबल है और डायरेक्ट बहुत बड़े जायंट भी है. सी से स्टार्ट होता है प्रतीक. ओके, ठीक है, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल है, जैसे कि एक छोटा सा अमीबा. अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक सेल है, वो सिर्फ एक सेल. और हम लोग ना वैसे हजारों भी नहीं बोलेंगे, बहुत मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी में. मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से हम लोग बने हुए हैं, ठीक है? और उसमें का एक सेल निकालो, वो मिलियन और ट्रिलियन में से एक निकाल दो, तो वो एक यूनिसेल्यूलर, मतलब वैसा एक सेल भी जिंदा रह सकता है. और हमारे जैसे इतने मल्टी सेलुलर लोग भी वही सब फंक्शन कैरी आउट करते हैं, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, और वो एक छोटे से सेल में भी सेम फंक्शंस होते हैं. तो सोचो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है. समझ में आ रहा है? समझो कितना इंपॉर्टेंट है. यू आर न्यू टू माई क्लास अभिषेक. ओके, आई कांट से दैट. ओके, तो क्या बोल रही थी मैं आप लोग को? छोटे से छोटा बड़ा है. और चलो हम लोग तो भी नॉर्मल है. ब्लू व्हेल आपको पता है ना कितनी बड़ी है, ठीक है? ब्लू व्हेल में भी कितने सेल्स होंगे, इमेजिन करो आप लोग. जब आप लोग को पता है, अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी के सेल्स को निकालते हैं और ऐसा अरेंज करेंगे ना, ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक, तो हम लोग ना अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ को 1 2 3 टाइम्स ऐसा हम लोग कवर कर सकते हैं. अगर एक ह्यूमन बॉडी के, समझो फॉर एग्जांपल मेरे सेल से अगर हम लोग अर्थ को कवर करने जाएंगे ना, तो उसको 3 बार कवर कर सकते हैं. तो सोचो मुझ में इतने सेल है.
समझे? ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म में इतने सेल होते हैं, तो इमेजिन करो ब्लू व्हेल से तो हम लोग से कितनी टाइम्स बड़ी है, तो उसमें कितने सेल्स होंगे, तो वो भी वही फंक्शन कैरी आउट करते हैं, और एक छोटा सा उसमें का एक सेल वो भी वो फंक्शन कैरी आउट करता है। इतना समझा आप लोग को? आई एम ऑल्सो न्यू स्टूडेंट। ओके सरिका। Nerve cells in brains. Yes, you have got nerve cells in brain. Nice teaching. Thank you. Ma'am, I'm new in class. Okay, Manoj, even you are new. You got the introduction, Manoj, and all. Whoever is new here, you got the introduction. If not, then you can see the recorded section of this session of this live lecture also. Okay. You are in 8th standard. It's okay. 8th standard में मैंने पढ़ा है यही सब चीज। तो ठीक है, तो ये है, ऐसा दिखता है एक सेल। किधर गया है? यहाँ पे देखो, अभी हम लोग को इतना अच्छे से ऑडियो विजुअल फॉर्म में अवेलेबल है ना। Bodies of all living organisms. Cell. We have learnt that cellular organization is the primary characteristic of all living organisms. एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानेंगे कैसे? उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या उसमें सेल्स होते हैं, यही उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज मेड अप ऑफ सेल। ओके प्रतीक, हेलो। ठीक है, तो सेल हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताया था ना बोर्ड पे। क्या लिखा था मैंने बोर्ड पे? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रिमेम्बर? ये भी बताया था मैंने बोर्ड पे। वैसे इस सेल से बनते टिश्यू। टिश्यू देखो कैसे दिखते हैं। मैं अभी आप लोग को ऐसे बोर्ड पे बता सकती हूँ क्या? नहीं, इसलिए आई एम यूजिंग होम रिवाइज ऐप। टिश्यू से देखो अभी एक ऑर्गन बना। क्या है वो? स्टमक। उससे क्या बना? डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बना, और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना। दिखा? समझो, ये स्टमक का एक सेल निकाला, उसके जैसे बहुत सारे सेल साथ में आके टिश्यू बन रहे हैं, और वो टिश्यू से बना है पूरा एक ऑर्गन जिसका नाम है स्टमक। और स्टमक किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बताया है। तो ये हो गया हमारा स्टमक, जिसमें इंक्लूडेड है वो वाला ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ पे है ऑर्गेनिज्म। ओके तनिष्का, इतना समझा आप लोग को? इज दैट अंडरस्टूड? इफ यस, गिव इट अ लाइक। स्टैंडर्ड 7। ओके, एंड यस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दो, ह्यूमन हो गई, कैट हो गई, काउ, सब में सेल ही होते हैं। ओके, देन यू विल रियलाइज दैट यार लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो सिर्फ एनिमल्स नहीं आते हैं। वी हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड, लाइक राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 वी हैव स्टडीड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट्स भी आते हैं। पता है ना आप लोग को क्यों है वो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हम लोग ने, सब लोग ने पढ़े है ना ये, व्हाई प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? ठीक है, वो लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो लोग का भी रिप्रोडक्शन होता है, हर लाइफ प्रोसेस हो रही है, तो भाई उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे ना। एम आई राइट? तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मैंने तो बोला था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होना चाहिए, तो उसमें भी सेल होते हैं। हम में एनिमल सेल्स होते हैं और इनमें प्लांट सेल्स होते हैं। दो ही टाइप के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं या फिर प्लांट सेल्स होते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? यस, डायनासोर ऑल्सो। यस प्रतीक, और वो तो कितने सारे सेल्स होंगे उसमें। यस, प्लांट सेल होता है इसमें। ठीक है, वो प्लांट सेल फिर सब फंक्शन कैरी आउट करते हैं। देखो प्लांट सेल कुछ ऐसा दिखता है। समझा भी आप लोग को ये सेल्स का? Use your brain power. Where do the life processes of unicellular सोचो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो कि सिर्फ एक सेल है, तो उसमें कहाँ से आ गया? हार्ट कहाँ से आएगा? ब्रेन कहाँ से आएगा? उन लोगों को समझ में आने के लिए ब्रेन कहाँ से आएगा? उन लोग जो भी खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से आएगा? वो जो भी खा के एक्सक्रीट कर रहे हैं उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से आएगा? पता है आपको? एक सेल, ये देखो यहाँ पे बताएगा आप लोग को, एक सेल है ये सिर्फ। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया ना ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें से ये सिर्फ एक सेल है। फिर भी इसमें आप लोग को दिख रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स एंड ऑल। ये इतने से पार्ट में भी ना आप लोग को ये दिखते भी नहीं है। ठीक है, सेल्फ मतलब ही क्या है कि आप लोग को वो दिखते नहीं, इतने माइन्यूट है, वी कांट सी इट विद नेकेड आईज। हम लोग को उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा भी एक सेल है जिसमें जान है। आप लोग समझ रहे हो? उसमें लाइफ है, they can carry out life processes, so it is something to wonder about. Am I right? Okay, you're Pranjali. Are you new for this lecture? 8th standard. Why you continuously ask the same thing? 8th standard का पढ़ाओ ना। आपको पढ़ाया ना मनोज 8th standard का? नहीं देखा आपने लेक्चर्स? और होने भी वाले हैं, ऐसे नहीं मैंने स्टॉप कर दिया। Yes Abhishek, I will take 8th standard also, don't worry. Is that understood? Tanishka, I can't reveal that, okay, right now. बाद में देखते हम लोग।
You want me to explain it again? You are Payal, okay. हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी, अगर एक सिंगल सेल भी है ना तो उसमें भी वही सब लाइफ प्रोसेसेस कैरी होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा। कैसे होगा रिप्रोडक्शन? ये जो सेल है ना, यहाँ से बीच में से इसका लाइसिस होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, यही दो बनते हैं, फिर वो दो बनते हैं ना, उससे और दो बनते हैं, तो ऐसा करते करते वो मल्टीप्लाई होते हैं। सेल्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। सो ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल्स टेक प्लेस इन वन सेल ओनली। Is that understood? Within the ये one दो एग्जाम्पल दिया यूनिसेल्युलर का, एक अमीबा और एक पैरामेशियम, ये दोनों एक एग्जाम्पल्स है। इज दैट अंडरस्टूड? किसके एग्जाम्पल है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। अभी यहाँ पे देखो, रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। उन्होंने, अभी मैं अपने खुद से मतलब यहाँ पे ओरली बता रही हूँ आप लोग को, आप लोग इसको एनिमेटेड फॉर्म में देखोगे अच्छे से समझेगा। इट वॉज लाइक एक ट्री का कॉर्क एक पार्ट होता है ना, ठीक है, उसको उसने एकदम क्लोजली ऑब्जर्व किया ना, तो उसको पता चला उसमें कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। वो कैसे दिख रहे थे पता है आप लोगों को? ये पता है ना, हनी बी का ये होता है ना, हनी कोम्ब होता है ना, कैसे रहता है? हेक्सागन 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 ऐसा रहता है ना, वैसे दिख रहा था उसको, तो उसने वो कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। यू अंडरस्टूड नाइसली जय भाई। व्हाट योर नेम? व्हाट्स योर नेम? सेल वॉल के बारे में बताओ। यस ऑब्वियसली सेल वॉल, ऐसे मैं डायरेक्टली आई कांट एक्सप्लेन यू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स अंटिल एंड अनलेस हम लोग बेसिक से नहीं जाते। देख लो ना आप लोग, हम लोग पहले सेल पढ़ा, फिर इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। यस, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, उसी के बारे में बता रही हूँ आपको। सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ऑब्जर्व किए थे उन्होंने कि उसमें कंपार्टमेंट थे, और वो लैटिन में, ग्रीक में उसको क्या बोलते थे? सेल। सेल्स मतलब क्या था? सेल का मतलब क्या था? सेला मतलब खाली जगह, ठीक है, रूम्स, ठीक है। तो उन्होंने वो कंपार्टमेंट को सेल नाम दे दिया, तब से हमारे ये नाम सेल पड़ गया है, ठीक है। तो फिर वो क्या थे? छोटे छोटे सेल्स थे। मीरा, ओके, इतना समझा आप लोग को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया साइंटिस्ट के बारे में। मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। measurement and observation. Von Leeuwenhoek, ये आप लोग को लेविन हुक के बारे में याद रखने का है, ठीक है। उन्होंने क्या किए थे? माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हम लोग सेल्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी एक छोटे छोटे सेल्स है, पता है ना आप लोग को? बैक्टीरिया भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ एंड ऑल। देखो ऐसा cells दिखता are है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना, ये सॉरी माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे दिखते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? ऐसा बहुत छोटे होते हैं, हम लोग उसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। sizes. यस, ये अभी हम लोग हर चीज का मेजरमेंट का एक चीज होता है। जैसे हम लोग कपड़े को मेजर करते हैं, हम लोग लेंथ में कैसे करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं ना, वैसे इन लोग माइक्रोमीटर में करते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटा होता है, माइक्रो मतलब ही छोटा, ठीक है। यस अभिजीत, ठीक है। माइक्रो मतलब ही छोटा होता है, तो मतलब क्या? माइक्रोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं सेल को। ये सेल लिख रहे हैं माइक्रोमीटर का, ये सेल लिखने माइक्रोमीटर का, ऐसा इतने छोटे होते हैं उन लोग, ठीक है। इसके लिए उन लोग को ऑब्जर्व करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लगता है, ठीक है। तो हम लोग आप लोग देख लेना ये सब, ठीक है। 1 micrometer or micron is equal to 1000. Can you tell? Are the cells that you observed all alike? सेल्स देखो कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। अमीबा अलग है, रेड ब्लड सेल अलग है, स्पाइरोगायरा, फैट सेल्स अलग है, तो सबका शेप भी डिफरेंट होता है। सेल्स के स्ट्रक्चर और शेप सब अलग होते हैं, ठीक है। और सब उनके किस पे डिपेंड करते हैं? देखो ये सब शेप्स हो सकते हैं। Boo? सर्कुलर हो सकता है, रॉड शेप, ऐसा रॉड शेप होता है। अभी आप लोग को तो सेल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आप लोग को? कोरोना वायरस की वजह से। एम आई राइट? कोरोना वायरस भी ऐसे ही है ना, हम लोग देख सकते हैं क्या? हम लोग की आंखों से नेकेड आई से किसी ने देखा है अभी तक कोरोना वायरस को सामने सामने? नहीं, बिकॉज क्या है वो, ठीक है, इतने छोटे हैं, हम लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको भी हम लोग यही इसी में बोलेंगे, ठीक है। वायरस भी विल कम्स अंडर माइक्रोब्स, ये सब उसके शेप है, ठीक है। अभी हम लोग इसके पार्ट्स देखते हैं, ओके, सेल के। Organisms. These components are called organelles. These organelles are studied in detail with the help of the electron microscope. देखो आप लोग ने अभी एक माइक्रोस्कोप देखा था ना, अभी जो आप लोग को दिखा था। मैथ्स ना, यस होने वाला है मैथ्स।
टोल्ड यू ना अभिजीत, ठीक है। हाँ, तो मैं आप लोग को बोल रही थी कि हाँ, अभी आप लोग ने जो माइक्रोस्कोप देखा था ना, दैट वाज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इट वाज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसका उससे आपने देख लिया ना सेल दिखता है, बट अभी हमको सेल्स के अंदर भी देखना है यार, उसके अंदर क्या क्या है। हम लोग के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, उन लोग के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अब हमको ऑर्गेनल्स देखना है, ये तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकता है, वो उसमें एक एक टाइम तक ही, एक लिमिट ही उसकी मैग्निफिकेशन होती है ना। तो इसके लिए हम लोग ने एक और बड़ा माइक्रोस्कोप बनाया है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है, स्क्रीन से कनेक्ट करना पड़ता है, हम लोग उससे बहुत छोटी चीज भी मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो हम ऑर्गेनल्स उससे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर दैट। इज दैट अंडरस्टूड? 2 into 10 billion times. 2 into 10⁻⁹ मतलब समझ में आता है आप लोगों को? 10⁹ मतलब वो जो जीरो है ना, वो 9 टाइम्स रिपीट होगा, तो कितना ज्यादा मैग्निफिकेशन आता है, सोचो, ठीक है। तो अभी हम लोग ना एक प्लांट सेल और Which are the common components of plant ओनली and लास्ट 10 minutes, ओके। हम लोग बहुत लंबा लेक्चर्स नहीं रखेंगे, विल टेक अ शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर, जिसमें एटलीस्ट हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हाँ चलो ये चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, मैम ने मुझे समझाया था, नाउ दिस चैप्टर विल गो इजी फॉर मी। आई जस्ट वांट दैट कि हाँ आप लोग को समझे और आप लोग के डाउट्स भी क्लियर हो, ठीक है। इज दैट अंडरस्टूड? यू आर न्यू फॉर द लेक्चर अश्विनी, ओके, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ रहा है ना, सो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड यस, सब्सक्रिप्शन का मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है आप लोग को, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल दिख रहा है, कंपेयर करते हैं इसको, देखो क्या क्या होते हैं इसमें। न्यूक्लियस, देखो अभी आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है। the nucleus is न्यूक्लियस कैसा हो गया पता है? हमारे हमारा जो मेन सेल है, हर सेल में, हमारे बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल में एक न्यूक्लियस है। उसके अंदर ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से ही सेल डिवाइड होगा आगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या है पता है? डीएनए आरएनए सुना है आप लोग ने, जेनेटिक मटेरियल। उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर है एक सेल की। मेरी इंफॉर्मेशन मेरे जीन्स में स्टोर है, एम आई राइट? मेरे बारे में सब कुछ मेरे जीन्स में स्टोर है, ठीक है। वैसे एक कोई भी सेल ले लो, एनिमल सेल, उसके बारे में सब कुछ उसके जीन्स में स्टोर है। और वो जीन्स और वो डीएनए या फिर आरएनए कहाँ प्रेजेंट है? उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। यस, इंग्लिश तो कल होने वाला है ना, ओके। सो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो। इज दैट अंडरस्टूड? और वो न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल हो गया, ठीक है। और कौन से है? देखो ये है एक न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शन ऑफ द सेल, जैसे हमारे ब्रेन हो गया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक ऑर्गेनल है। मैं ऑर्गेनल्स के नाम बता रही हूँ बस फटाफट। गोल्गी बॉडीज एक ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है हम लोग को। प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनल है, ठीक है। वैक्यूल एक ऑर्गेनल है। whereas कहीं there's पे तो एक only शॉर्ट one में ना, large vacuole in a plant cell. कहीं तो Observe, शॉर्ट में लिखा है the ये cell सब। has हाँ ये देखो यहाँ पे, ये शॉर्ट में, ये मेन पार्ट्स हैं सेल के। देखो सेल वॉल, ओके, ऑब्वियसली घर है तो एक वॉल तो रहेगी ना, ठीक है। अंदर की चीजें प्रोटेक्टेड रहने के लिए क्यों रहेगी वॉल? ताकि अंदर की चीजें प्रोटेक्टेड रहे, ओके। ये हम एकदम शॉर्ट में मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक सेल वॉल रहेगा, उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन रहेगा। ये दिख रहा है आप लोग को, डबल लेयर मेम्ब्रेन दिख रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे समझो कि वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल रिजिड है और सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वो इन और आउट की एंट्री को वो करेगा, कौन सी चीज अंदर आनी चाहिए सेल से और कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए सेल से, ये सब रेगुलेट कौन करेगा? वो जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ऐसा समझ लो वो हमारे घर के कर्टेन्स की तरह है। कर्टेन से हम लोग जा सकते हैं, पर कर्टेन्स प्रिवेंट करती है धूप अंदर ना आए, कर्टेन्स प्रिवेंट करती है डस्ट अंदर ना आए। तो वो एक तरह से परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीजें आ सकती है, हवा आ सकती है, बट डस्ट नहीं आ सकता है। तो उसी तरह हमारे उस पर्दे की जैसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, जो कुछ चीजों को अलाउ करता है अंदर आने, कुछ चीजों को अलाउ करता है बाहर जाने। इज दैट अंडरस्टूड? इट्स ओके श्रेया, इज दैट अंडरस्टूड? तो सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल दिख रहा है आप लोगों को, पर एनिमल सेल में दिख रहा है नहीं। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। इतना समझा आप लोग को? इज दैट अंडरस्टूड? इफ अंडरस्टूड गिव इट अ लाइक।
Okay? Okay, standard 7th. Are you with me? Let me know in the comment section. Are you with me? है सब लोग यहाँ पे? समझ रहा है आप लोग को? प्रोसीड करूँ ना मैं? समझाऊँ ना आप लोग को? ठीक है, कोई बैक नहीं कर रहा है, मेक श्योर आप लोग बैक करके दूसरे टैब में कुछ और नहीं देख रहे हो, बिकॉज 1 घंटे का आधा घंटे का लेक्चर है, थोड़ा ध्यान दे दो, आप लोग को पूरा लेक्चर समझ में आएगा. ठीक है, कोई आप लोग को इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला है अगेन एंड अगेन. सेल ऑर्गेनल्स, Organelles. ये सब ऑर्गन्स जो अंदर प्रेजेंट है, दीज आर सेल ऑर्गेनल्स. और ये जो सेल ऑर्गेनल को छोड़ के ये जो पार्ट है ना, जेली लाइक रहता है, वो जेली लाइक ऐसा. ठीक है, विच इज नीदर सॉलिड नॉट लिक्विड. जेली खाते हो ना, बस वैसा. इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड है, उसके अंदर से लगे हुए सेल ऑर्गेनल. जेली के अंदर हम लोग कैसे कुछ डाल देंगे, ठीक है, तो वो कैसे उसमें एम्बेडेड हो जाएंगे ना, वैसे ये जेली लाइक है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, ताकि वो अपनी जगह से यहाँ आ जाए. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइव लेक्चर टुमारो. जब आओगे ना आप लोग सब लोग, विल यू ऑल अटेंड माय लाइव लेक्चर टुमारो? सो यू अंडरस्टूड एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, उसके ऑर्गेनल समझ गए आप लोग को? Lysosome. ठीक है, तो ये लाइसोसोम्स एंड और ये बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स है. तो अभी आप लोग ये देखोगे होम रिवाइज ऐप में, तो आप लोग को समझ जाएगा. मोस्टली सब एक्टिविटीज है और यूजेस है. ठीक है, अभी हमारा एक पार्ट हुआ, दैट वाज हमारा ये सेल का ये स्ट्रक्चर. हमारा माइक्रोब्स वाला पार्ट इज रिमेनिंग. इफ वी गेट टाइम वी विल कंटिन्यू विद दैट पार्ट ऑल्सो. ओके, सो बाय एवरीवन. लीव करूं मैं? यस. बिफोर लीविंग इफ यू आर इन स्टैंडर्ड 7, अगर आप लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वहां पे जाओ, जल्दी से सब्सक्राइब करो. वाई? और उसके बाद जाके ये दबाओ, बेल आइकन प्रेस करो. वाई? बिकॉज इफ आई कम लाइव फॉर द नेक्स्ट टाइम, आप लोग को लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को डायरेक्टली यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट होम रिवाइज इज गोइंग लाइव. ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ना, आप लोग को लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो बेल आइकन आप लोग एटलीस्ट प्रेस करो. एंड इफ यू हैव लाइक द लेक्चर, आपका पहला लेक्चर था, इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई वाज मेकिंग अंडरस्टैंड, तो प्लीज गिव इट अ लाइक. ओके.